Hello everyone, once again welcome to our channel. In this video I will explain subject verb concord agreement. I know that I have made a video upon subject verb concord earlier as well, but for the term 2 class 9th and 10th you all have to watch this video. English grammar, tenses, for every concept will be clear for English grammar, and it's mainly for term 2. Yes guys, the grammar section of the class 9th and 10th English exam term 2 syllabus for grammar will be the same like tenses. I have provided tenses videos. Subject verb concord for term 2, I know that you all have forgot a subject verb concord. If you don't have watched our earlier video, you can watch from the links given below, and in this video you will get to revise the subject verb concord agreement for term 2 guys. Yes, for term 2 you have to study subject verb concord. It will come as error detection in term 2 for 10th and for 9th as well, English grammar. So let's begin guys. What is subject verb concord? Let's understand. So what is subject verb concord? Yeah, first of all, concord meaning that agreement or harmony between people or groups. When we agree something, harmony is there between people or groups, it's called the concord. And subject verb agreement means the subject and verb in a sentence must match or agree with each other. तो सेंटेंस को मैच करना चाहिए किसके साथ? सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच जरूर करना चाहिए गाइस. And there are some grammatical rules to understand subject verb agreement. Let's get to understand with trick. Yes, how you can recognize subject verb concord, how you can match it. So there will be trick and understanding of subject verb concord. So let's understand without wasting time. First rule of subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पहला रूल देखने वाले हैं हम लोग. तो फर्स्ट रूल दैट आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन एंड द वर्ब द action word in a sentence. If the subject is singular, keep it in mind. If the subject is singular, verb describing its action should be also in singular. तो verb भी singular रहना चाहिए. ठीक है. If the subject is plural, अगर subject आपका plural है, then the verb should be also plural. Like verb plus singular verb, subject plus verb, plural subject plus verb be. The result is significant. The result are significant. तो रिजल्ट इज लगाया हमने क्योंकि रिजल्ट है एक है, और रिजल्ट्स हैं तो बहुत सारे, तो आर लगाया है यहाँ पे. इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा. डू द स्टूडेंट डज हर बेस्ट, द स्टूडेंट्स डू देयर बेस्ट. इस अकॉर्डिंग आपको देखना है गाइस. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं. कैन ऑफ लीमा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ. तो कैन क्या है? एक सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है? सिट्स. कैन बैठता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है बीच में. ठीक है. तो सिट्स ये वर्ब की सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर था. द वर्ब सिट्स अग्रीज विद द सब्जेक्ट कैन, नॉट विथ बीन्स. तो बीन्स के साथ मैच नहीं करना हमें. तो बीन्स था, बहुत सारे थे तो हम आर लगाते नहीं, एक उसके हिसाब से हमने सिट्स लगाया. ठीक है. तो द वुमेन, सब्जेक्ट वुमेन है. हु वेंट टू द मीटिंग वर. तो यहाँ पे वुमेन बहुत सारी है, तो यहाँ पे हमने वॉज नहीं लगाया, हमने वर लगाया, क्योंकि तुम्हें पता है वॉज फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ लगता है. ठीक है. सेकंड पर्सन थी वुमेन, वैसे थर्ड पर्सन थी बट वर लगेगा क्योंकि ये बहुत सारी हैं, एक औरत तो है नहीं. ठीक है. द वर अग्रीज विद द सब्जेक्ट वुमेन नॉट विथ मीटिंग. तो मीटिंग के साथ नहीं करा. ठीक है. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द डॉग चेंजेस द कैट, चेजेस द कैट. तो डॉग एक ही है, नाउन सब्जेक्ट. चेजेस तो ये सिंगुलर है. ठीक है. एस लगा के वर्ब में हम सिंगुलर बनाते हैं, और सिंगुलर एस है. डॉग अगर लग जाता तो ये प्लूरल हो जाता ना. द डॉग्स चेज द कैट. यहाँ पे चेज ही रखा हमने, ये प्लूरल है. डॉग से बहुत सारे प्लूरल वर्ब था तो प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल है. ठीक है गाइज. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. ओके. So let's now understand about subject verb convert through our handwritten notes, and let's see. Subject and the verb in a sentence must match or agree with each other. तो एक दूसरे से मैच करने चाहिए. ठीक है गाइस. तो मैं आपको बताता हूँ.
रूल 1, सब्जेक्ट मस्ट अग्री वर्ब इन नंबर। नंबर सिंगुलर और प्लूरल में मैच करना चाहिए, जो कि आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हैंड रिटन नोट में, ही प्लेज फुटबॉल, सिंगुलर है, प्लेज है फिर भी सिंगुलर है, वह खेलता है। एस वर्ब में तब लगाते हैं ताकि वो सिंगुलर बन सके, ठीक है। तो लेकिन सब्जेक्ट में एस ताकि लगाते हैं ताकि वो प्लूरल बन सके, दे प्ले फुटबॉल, ये प्लूरल है, ठीक है गाइस। तो बेसिक रूल ये है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब। बट कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आई वॉक, आई वॉक का प्लूरल वी वॉक हो जाएगा, ठीक है। यू वॉक रहेगा, ही शी इट वॉक तो दे वॉक। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुए हैं ना कि वर्ब हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। द सेकंड रूल इज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल विल नॉट चेंज ड्यू टू द वर्ड्स फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो देखें रूल 2, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सैक्ड। In case these were two different individuals, guys, two articles need to be used. The captain and the coach of the team have been sacked. को निकाला गया है, दो लोगों को, ठीक है। हैव बीन हमने यूज किया। अब समझते थर्ड एंड फोर्थ रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, गाइस। तो थर्ड रूल कहता है सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब। जहाँ पे एंड आ जाएगा वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखना है ये भी, राधा एंड मीरा आर, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। राधा एंड मीरा आर कमिंग, दो लोग आ रहे हैं, एंड इसलिए लगाते हैं ताकि दो लोग होते हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो वर्ब भी हमें प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर यूज अ सिंगुलर वर्ब। बट जहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर आ गया, ऑप्शन आ गया, वहां पे लेकिन हमें क्या यूज करना है, वर्ब हमें सिंगुलर यूज करना है। लाइक नाइदर अक्षय नॉर रोहित इज सिंगुलर है ना, इज कमिंग होम। ना तो अक्षय आ रहा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों में ऑप्शन मिल रहा है, आएगा एक ही, नंबर्स में तो वो एक ही है ना। तो माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग, ये दो लोग नहीं है, या तो डैड आ सकते हैं या तो मॉम आ सकती है, इसलिए इज लगाया है, इसलिए वर्ब हमने सिंगुलर रखा है गाइस। अराइविंग टुडे, वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नॉर अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोज टू इट। तो रूल 4 क्या कहता है कि वर्ब जो कि सेंटेंस में है और जिसमें आइदर और नाइदर नॉर लग रहा है, वो क्लोज वाला देखना है हमें। लाइक नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस, तो बैग है इसलिए मैचेस, हेयर बैग इज द क्लोज टू वर्ब हैंस मैचेस लिखा हमने, ठीक है गाइस। तो रूल थर्ड क्या कहता है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी आर ऑलवेज सिंगुलर। ये सारे सिंगुलर है गाइस, आपको प्लूरल लगते होंगे, ठीक है, बट ये सारे सिंगुलर है। कैसे हैं ये सारे सिंगुलर, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज सेल्फिश, एवरीवन आर नहीं लिख देंगे हम यहाँ पे, समझना इस चीज को, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का एग्रीमेंट है। सो everyone is selfish, always remember that when either and neither are used as pronouns they are treated as singular। जब भी प्रोनाउन की तरह either neither लगेंगे तो वो सिंगुलर होते हैं, उसके वर्ब सिंगुलर रखें। ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब को रखना है। तो ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के रूल 9 to 12 में आपको आगे समझा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।